تمہیں پتہ تو ہے میرے مزاج کا، پھر ہر دفعہ چاہتے ہو کہ دو چار سناؤں، پھر تم جاگو گے۔ ٹائم بڑا مختصر ہے اور میں نے حضرت استاد محترم کی منت و سماجت کر کے جلدی ٹائم لیا ہے کہ میں نے آگے طویل سفر کرنا تھا اور میں کافی دیر سے آیا ہوا تھا خانپور میں۔ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے میری گزارش قبول کر لی۔ اب میں نہیں چاہتا کہ بات لمبی ہو اور آپ کو جگانا، اٹھانا، ہلانا پڑ جائے، خود بخود جاگ جائیں۔ جس طرح کسی نے پانی مانگا تھا نا کہ کوئی بندہ ہے پانی تو پلا دے، اس نے کہا خود بندہ بن جاؤ، جا کے پی لو۔ تو آپ بھی خود بخود جاگ جائیں تاکہ مجھے کوئی محنت نہ کرنی پڑے۔ میں بڑی مختصر اور بڑی شارٹ کٹ سی گفتگو، جو عنوان موضوع سخن میں اپنے ذہن میں رکھ کے آیا تھا، اسے میں سپیئر رکھتا ہوں۔ اور آج چونکہ آپ کے سامنے یہ مصر کے شہزادے، مصری قرائے کرام تشریف فرما ہیں، آپ کو قرآن کے سمندر کی لہروں پہ تیرائیں گے، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں ایک دو باتیں اسی قرآن مقدس کے بارے میں آپ کے گوش گزار کروں کہ جس قرآن پاک کا ختم یہاں کے طلباء نے کیا ہوگا، ان کی بھی آج دستار بندی ہوئی ہوگی اور انہوں نے قرآن مقدس کے 30 پاروں کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہوگا۔ تو اس کتاب کے بارے میں بڑا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کرنے چلا ہوں کہ کائنات کے رب نے اپنی اس کتاب کا تعارف بڑا خوبصورت اور بڑا جامع معنی مختصر انداز میں سمندر کو مٹھی میں بند کرتے ہوئے سورہ بقرہ کے شروع میں 3 حرف اور 2 جملے فرمائے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب رب کونین کی دربار میں دستے سوال دراز کرتے ہیں، اللہ آپ نے جو قرآن مقدس کی تعارف اور قرآن مقدس کی صداقت، حقانیت اور معیار حق ہونے کا ذکر جب کیا تو اس سے پہلے یہ الف لام اور میم کہنے کی کیا ضرورت پڑی؟ ان کا معنی کیا ہے؟ ان کا مطلب کیا ہے؟ ان کی تفسیر، تشریح، ٹرانسلیشن اور ان کا مفہوم کیا ہے؟ تو علماء، مفسرین، محدثین لکھتے ہیں کہ واللہ عالم کہ ان حروف مقطعات کا معنی اور مطلب کیا ہے، لیکن کچھ اہل دل اپنے آئیڈیاز کو، اپنے گیس کو، اپنی وجدانی کیفیت کے اظہار کو لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ الف لام میم تسویہ ہے۔ دیکھنے میں تو یہ 3 حرف، لیکن حقیقت میں یہ 3 قسمیں ہیں۔ کائنات کے رب نے سب سے پہلے قرآن مقدس کا جب ذکر کرنا چاہا تو پہلے 3 قسمیں اٹھائی، الف مجھے اپنی الوہیت کی قسم، لام مجھے جبریل کی صداقت کی قسم، میم مجھے محمد کی عظمت کی قسم۔ اللہ ضرورت کیا پڑی؟ آپ بغیر قسم کے فرماتے، ہم تو بھی یقین کرتے، لیکن آپ نے قسمیں کیوں اٹھائی؟ تو جواب شکوہ ملتا ہے اس لیے کہ 14ویں صدی کا مرتد، 14ویں صدی کا زندیق، 14ویں صدی کا کوئی چوڑا، 14ویں صدی کا کوئی مراسی، 14ویں صدی کا کوئی ملنگ اگر تمہیں آ کر بہکانے لگے، پھسلانے لگے، کنفیوز کرنے لگے، مس گائیڈ کرنے لگے کہ یہ قرآن سچا نہیں، یہ قرآن محرف، یہ قرآن مبدل، یہ قرآن صحابہ کی لکھی ہوئی عام کتاب، تو کائنات کے رب نے کہا میں نے اس لیے 3 قسمیں اٹھائی کہ الف مجھے اپنی الوہیت کی قسم، لام مجھے جبریل کی صداقت کی قسم، میم مجھے محمد کی عظمت کی قسم۔ جیسے میں سچا ویسے یہ کتاب سچی، جیسے جبریل سچا ویسے یہ کتاب سچی، جیسے محمد سچا ویسے یہ کتاب سچی، جیسے ہم میں شک نہیں ویسے اس میں بھی شک نہیں، جو ہم میں شک کرے وہ بھی ہمارا نہیں، جو اس کتاب میں شک کرے وہ بھی ہمارا نہیں۔ اور پھر رب کائنات نے بڑا مختصر شارٹ کٹ کرنے چلا ہوں، الف لام میم 3 قسموں کے بعد پھر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب، یہ کتاب بے عیب، یہ کتاب
शक व शुबा, वहम व गुमान, तरद्दुद और रायबा व शायबा और मिरिया से भी पाक कायनात के रब की दरबार में फिर मैंने दस्ते सवाल दराज किया। अल्लाह आपने ज़ालिकल किताबो लारे बफी कहा, हालांकि मैंने तो इस कुरान का जिक्र जब कुरान में देखा मुझे हर जगह लफ्ज़ कुरान नजर आया। यासीन वल कुरान अल हकीम अर्रहमान अल्लमल कुरान बल हुवा कुरानुन मजीद इन्ना हाज़ल कुरान, और इसी तरह शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान बल हुवा कुरानुन मजीद, हर जगह लफ्ज़ कुरान था, लेकिन यहाँ ज़ालिकल कुरान नहीं कहा बल्कि ज़ालिकल किताब क्यों कहा? तो भी मुझे जवाब शिकवा मिलता है, इसलिए कि अगर हम ज़ालिकल कुरान कहते 14वीं सदी का मुर्तद तुम्हें फिसला सकता था कि रब ने कुरान को सच्चा कहा, और कुरान को तो हम भी मानते हैं। ये कुरान नहीं, कुरान तो वो जिसके 40 पारे, कुरान तो वो जिसके 10 पारे बकरी खा गई, कुरान तो वो जो गारों में छुपा पड़ा है। ये तो मुहर्रफ किताब, ये तो मुबद्दल किताब। तो कायनात के रब ने फरमाया ज़ालिकल कुरान नहीं ज़ालिकल किताब कहा, ताकि उस दज्जाल के दजल का, फरेब का, धोखे का पर्दा चाक करने के लिए ज़ालिकल कुरान का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि ज़ालिकल किताब कहा कि मेरे नबी की उम्मत के लोगों, ये किताब सच्ची है जो तेरे हाथों में है। ज़ालिका इसमें इशारा है, फरमाया ये किताब जो तू पढ़ रहा है, ये किताब जो तेरे हाथों में है, ये किताब जो तेरी मस्जिद में है, ये किताब जो तेरे मदरसे में है। आगे फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब मुत्तकीन की हिदायत का समंदर है। 2 जुमलों में पूरे कुरान का तारुफ कराकर समंदर को मुट्ठी में बंद कर दिया। मैंने फिर कहा अल्लाह अभी हमारा दिल भरा नहीं, अभी हम सैर नहीं हुए, हमें इस किताब का मजीद तारुफ चाहिए। अल्लाह इस किताब का नाम क्या है, अल्लाह इस किताब का काम क्या है, अल्लाह इस किताब का शान क्या है, अल्लाह इस किताब का मकाम क्या है, अल्लाह इस किताब का एहतराम क्या है, अल्लाह इस किताब का इकराम क्या है, अल्लाह इस किताब का असली मकाम क्या है, अल्लाह इस किताब की हिफाजत का इंतजाम क्या है, अल्लाह इस किताब को भेजने वाले का नाम क्या है, अल्लाह इस किताब को लाने वाले का नाम क्या है, अल्लाह इस किताब को लेने वाले का नाम क्या है, अल्लाह ये किताब जिस महीने में आई वो माह सयाम क्या है, अल्लाह ये किताब जिस रात में उतरी उस रात का शान क्या है, अल्लाह इस किताब को अगर पढ़े तो उस पर इनाम क्या है, अल्लाह इस किताब पर अगर अमल करे तो उसका अंजाम क्या है। तो भी मुझे जवाब शिकवा मिलता है कि अगर तुम्हें इन सारे सवालों का जवाब चाहिए तो फिर मुझसे क्यों पूछते हो? जरा वुजू करो, मेरी किताब को उठाओ, इसे खोलो, इसे चूमो, इसमें घूमो, इसमें छूमो, इससे बातें करो, सवालों जवाब करो। आलम अरवा से लेकर रोजे अज़ल से लेकर रोजे अबद तक मेरी किताब तुम्हारे हर सवाल का जवाब देगी। आओ कानपुर वालों, आखिरी बात करके बात वाइंड अप करने चला हूं। मैं तुम्हें कुरान के समंदर की लहरों पे तैराता चलूं और कुरान के दरवाजे को खटखटाता चलूं। उस किताब से पूछते हैं ए किताब तो हमें अपना तारुफ तो करा। तो किताब कहती है पूछो क्या पूछना चाहते हो। मैंने पूछा ए किताब तेरा नाम क्या है, तू अपना नाम तो बता। तो भी वो खुद जवाब देती है मेरा नाम पूछते हो, यासीन वल कुरान अल हकीम, मेरा नाम कुरान, मैं हिकमत का बहता हुआ दरिया हूँ। मेरा नाम पूछते हो अर्रहमान अल्लमल कुरान, मेरा नाम कुरान, मैं इल्म का बहता हुआ समंदर हूँ। ए किताब तू ये तो बता तेरा काम क्या है। तो भी वो खुद जवाब देती है मेरा काम पूछते हो हुदल लिल मुत्तकीन, मेरा काम ये है मैं मुत्तकीन की हिदायत का समंदर हूँ। जो भी आता है होता खाता है, पाक हो जाता है। ए किताब तू ये बता कि तेरा दुनिया के लिए मैसेज और पैगाम क्या है। तो भी वो खुद जवाब देती है मेरा पैगाम पूछते हो जाओ कायनात को बता दो कि इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, मैं ही वो किताबे हुदा, मैं ही वो किताबे शफा, मैं ही वो किताबे बरकत, मैं ही वो किताबे रहमत, मैं ही वो किताबे अज़मत जो मुझे सीने से लगाए मैं उसे घटा ठोक अंधेरों से उठाकर और जो सुरैया की बुलंदियों पे चढ़ा देती हूँ। ए किताब तू ये बता कि तेरा असली मकाम क्या है। तो भी वो खुद जवाब देती है मेरा मकाम
पूछते हो, बल हुआ कुरान मजीदुन फी लोहे महफूज, मेरा मकाम ये है कि मैं लोहे महफूज में नक्श रहती हूँ। ए किताब तू ये बता तेरा शान क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है। मेरा शान पूछते हो, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियन मुतसद्दियन मिन खशियतिल्लाह, मेरा शान, मेरा रौब, मेरा दबदबा, मेरा चाहो जलाल ये है कि अगर रब मुझे पहाड़ों पे उतारता वो भी मेरी हैबत से रेजा रेजा हो जाते। एक किताब तू ये बता कि तेरा एहतराम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है। खानपुर वालों, मेरे जुमलों को दिल के कंप्यूटर में सेव करना, मेरा जुमला ज़ाया न हो। एक किताब तू ये बता कि तेरा एहतराम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है। मेरा एहतराम पूछते हो, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, खबरदार मुझे कोई चूड़ा पलीद ना उठाए, मुझे अगर उठाना हो पहले पाक होके आना फिर मुझे उठाना। एक किताब तो ये बता कि तेरा इकराम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है। मेरा इकराम पूछते हो, इज़ा कुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू वानसितू लअल्लकुम तुरहमून, मेरा इकराम ये है कि जब इमाम मुझे फातिहा में पढ़ रहा हो ना, फिर चुप करके मुझे सुना करो, पीछे अपनी ना शुरू कर दिया करो। एक किताब तू ये बता कि तेरे भेजने वाले का नाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है। तंजीलों में रब्बिल आलमीन, मुझे आलमीन के रब ने भेजा। एक किताब तुझे लाने वाले का नाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है। नज़ल बिर्रूहुल अमीन, मुझे फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन लेके उतरा। एक किताब तू ये बता तुझे लेने वाले का नाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है। नुज़िल अला मुहम्मद, मैं मोहम्मद मुस्तफा पे नाज़िल हुई हूँ। एक किताब तू ये बता अगर तुझसे दोस्ती करे तो उसका अंजाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, जो मुझसे दोस्ती करता है मैं उसकी दुनिया भी बना देती हूँ, मैं उसकी उक़बा भी बना देती हूँ। अब्दुल्ला बिन मसूद के तलबा और उसके मुताल्लिकीन, खानपुर के रोशन ज़मीरों, यही कुरान जो तेरे मस्जिद और मदरसे में इन बोरिया नशीन उलमा की मेहनत से रूए ज़मीन के कोने कोने तक पहुंच चुका। आज दुनिया के यहूदी, दुनिया के ईसाई, दुनिया के हिंदू मत अपने अरबों डॉलर, पाउंड, यूरो खर्च करके भी आज तक एक तौरात व इंजील का हाफिज नहीं बना सके। उसके मुकाबले में ये उलमा एक एक रुपए का चंदा करके इतने हाफिज, इतने आलिम, इतने मुफ्ती पैदा कर चुके कि तुम रूए ज़मीन के जिस कोने में चले जाओ तुम्हें कुरान के हाफिज भी नजर आएंगे और दीन के आलिम भी नजर आएंगे। ये मदारिस की मरूने मिन्नत है जिनके आज पूरी दुनिया कुफ्र को थैंक सर जोड़ के बैठा है कि इनकी शहरत कैसे काटी जाए, हाँ इनकी सप्लाई लाइन कैसे काटी जाए, इनको कमजोर और इनको नातवा कैसे किया जाए। लेकिन मैं एक पैगाम दिया करता हूँ कि एक तुम्हारी तदबीर है, एक मेरे अल्लाह की तदबीर है। तुमने एड़ी चोटी का जोर लगाया, आज से नहीं पिछली कई दहाइयों से बड़ा प्री प्लान, बहुत ही ज्यादा साजिशें उलमा और मदारिस के खिलाफ, लेकिन आपने देखा कि वो साजिशें करने वाले आज कहीं नजर नहीं आ रहे। उलमा कल भी जिंदाबाद थे, उलमा आज भी जिंदाबाद है। इन उलमा और इन मदारिस का ताउन करना आप पे फर्ज है कि इस घटा ठोक अंधेरों में ये उलमा अपनी जानों को हथेली पे रखकर अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करके तुम्हारे बच्चों तक, तुम्हारे आने वाली नस्लों तक दीन को फैला रहे हैं, कुरान और हदीस की तरवीज और इशाअत कर रहे हैं। तो हमारा फर्ज है कि हम भी ये अहदो पैमा करें, जब तक जान में जान है उलमा के भी साथ रहेंगे। मस्जिद, मदरसा, दाढ़ी, पगड़ी, तबलीग, जिहाद, हर मिशन पर देवबंद के मानने वालों हमें साथ इनका देना होगा और पाकिस्तान में इनकलाब भी तब आएगा जब ये बोरिया नशीन तुम्हें असेंबलियों में नजर आएंगे। साथ दोगे? हाथ खड़े करके सारे बोलो साथ दोगे? खड़े होकर दोनों हाथ खड़े करके, खड़े होकर हाथ लहराकर पाकिस्तान के
कहना चाहता हूँ, जो कहा करता हूँ कि जाओ किताबों से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे, मैं अपने सहरा के सर्रे सर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। वसत दिल है बहुत, वसत